Welcome back, students. Now let's take another comprehensive question, that is of illustration number 65, and it is the last illustration of this chapter also. That is KLN Limited invited applications for issuing 1 lakh share of 10 rupees each at premium of rupees 2 per share. The amount was payable as on application 3 rupees per share, which include 1 rupees of premium. On allotment 4 rupees per share, which also include 1 rupees of premium, and first call of 3 rupees and second call for balance amount. Applications were received for 1,90,000 shares. An allotment was made to the application in the following categories. First category, the applicants of 50,000 allotted 40,000 shares, and applicants of 1 lakh share allotted 60,000 shares. Remaining applications were rejected. Rajat, a shareholder belonging to category first who had applied for 2,500 shares, paid to the pay amount of allotment and first call, and his shares were forfeited just after the first call. Rima, another shareholder belonging to category second and who had holding 3,000 shares, failed to pay the amount of first and final call. Her shares were also forfeited, and afterwards 4,000 shares reissued at the rate of 8 rupees as fully paid, which include all the shares of Rima. तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर्स की प्राइस है 10 रुपीज पर शेयर और 2 रुपीज प्रीमियम है, मींस 12 रुपीज. Application is of rupees 3, which include 1 rupees of premium, means 2 plus 1. Allotment is of rupees 4 and it also includes 1 rupees of premium, means 3 plus 1. First call is of rupees 3 and balance of second call. So what is the amount of second call? Total amount of share is 12. 3 plus 4 7 plus 3 10. Means second call is of 2 rupees per share. Clear? Now you have to prepare the pro rata chart for amount to ascertainment amount of share capital and excess money. Your company issued 1 lakh shares, but company received application for 1,90,000 shares. According to first category, applicants of 50,000 share allotted only 40,000 share. यानी 50,000 वालों को हमने केवल 40,000 शेयर ही दिए. And applicants of 1 lakh share allotted 60,000 shares only. यानी 1 लाख जिन्होंने डिमांड किए उनको हमने 40,000 शेयर दिए. अब देखिए 1,90,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई थी. 50 और 1 लाख मींस 150 का आपने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया. बचे कितने? 40,000 अभी भी रिमेनिंग है. तो मींस इन्हें आपने रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज क्वेश्चन सेज दैट रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड. बाकी की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है. नाउ अकॉर्डिंग टू 3 रुपीज पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 50,000 शेयर्स पर हमको 1,50,000 रुपीज रिसीव हुए होंगे, पर हमने शेयर दिए उनको 40,000. अकॉर्डिंग टू 3 रुपीज 1,20,000 ही हमने रुपीज यूज किए. ऑन 1 लाख शेयर 3 रुपीज के रेट से हमको अमाउंट रिसीव हुआ 3 लाख, पर हमने 60,000 शेयर ही दिए, तो 3 रुपीज के रेट से 1,80,000 रुपीज ही हमने यूज किए. And remaining 40,000 which were rejected on according to 3 rupees per share, 1,20,000 shares amount will be refunded. यानी 1,20,000 अमाउंट रिफंड किया जाएगा. अब देखिए on 1 lakh share at the rate of 3 rupees per share, यानी 3 लाख रुपीज आपकी अमाउंट जाएगा शेयर कैपिटल में, पर एक्चुअली हमारी एप्लीकेशन की वैल्यू ओनली 2 रुपीज है. 1 रुपीज तो प्रीमियम है, तो इस 3 लाख रुपीज में से 2 लाख रुपीज तो ये जाएंगे शेयर कैपिटल में, और रिमेनिंग 1 लाख रुपीज जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में. अब देखिए 1,50,000 रुपीज आपको रिसीव हुए थे, जिसमें आपने 120 यूज कर लिए, तो एक्सेस मनी कितनी बची? 30,000. सेकंड कैटेगरी में आपको 3 लाख रुपीज आए थे, 180 यूज किए, तो यानी इसमें एक्सेस अमाउंट बचा हुआ है 1,20,000. यानी टोटल एक्सेस मनी है 1,50,000 रुपीज की, जो आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे, बिकॉज
किसी को भी हमने हाफ या हाफ से कम शेयर अलॉट नहीं किए हैं, और ये 120 आपके रिफंड होंगे। सो दिस इज द प्रो राटा चार्ट। सो फर्स्ट एंट्री विल बी ऑफ रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 1,90,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई थी और अकॉर्डिंग टू 3 रुपीज पर शेयर आपको रिसीव हुआ होगा 5,70,000 रुपीज। 5,70,000। ठीक है, अब हाउ कैन यू ट्रांसफर इट? सो द एंट्री इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इट ऑल्सो इंक्लूड सिक्योरिटी प्रीमियम टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कुछ अमाउंट आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हैं तो टू शेयर अलॉटमेंट, और कुछ रिफंड भी कर रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री आप पास करेंगे। टोटल अमाउंट रिसीव हुआ था 5,70,000, जिसमें से 2 लाख रुपीज ये वाले आप शेयर कैपिटल में डाल रहे हैं तो टू शेयर कैपिटल 2 लाख। प्रीमियम में रिमेनिंग 1 लाख रुपीज जा रहे हैं तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 1 लाख। एक्सेस मनी ये 1,50,000 रिफंड कर रहे हैं तो 1,50,000 टू शेयर अलॉटमेंट, और ये 120 आपने रिजेक्ट किए हैं तो 1,20,000 इन बैंक अकाउंट टू बैंक। नाउ द थर्ड एंट्री विल बी ऑफ ड्यू ऑफ शेयर अलॉटमेंट। एंट्री विल बी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउnt, and it also includes security premium to two security premium reserve account. Now you have to pass the entry with 1 lakh share only. तो 1 lakh share according to rupees 4 आपको 4 lakh rupees amount चाहिए था, but in 4 rupees 1 rupees of premium included, so the allotment value is 3 rupees per share. So 1 lakh share according to 3 rupees, 3 lakh comes in share capital, and remaining 1 lakh rupees comes in security premium reserve account. Now the question says that a shareholder Rajat who belonged to category first and applied for 2,500 share did not pay the amount of first call. Applied for 2,500, so we have to calculate the allotted figure. 2,500 अप्लाइड है फर्स्ट कैटेगरी में, तो हमें अलॉटेड निकालना मींस वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय अलॉटेड फिगर मींस 40,000 एंड डिवाइडेड बाय 50,000। सो अलॉटेड फिगर क्या आ जाएगी आपकी 2,000। यानी उसने भले ही 2,500 के लिए अप्लाई किया पर कंपनी ने उसको शेयर अलॉट किए ओनली 2,000। तो एप्लीकेशन मनी कितनी हमें रिसीव हुई होगी? तो ऑन 2,500 शेयर अकॉर्डिंग टू 3 रुपीज 7,500 रुपीज उसने हमको सेंड किए होंगे, पर हमने यूज कितने किए? हमने उसको कंपनी ने शेयर दिए 2,000 मींस अकॉर्डिंग टू 3 6,000 रुपीज हमने यूज किए। 1,500 हमारे पास अभी भी एडवांस में बचे हुए। नाउ हमें अब अलॉटमेंट मनी चाहिए। Allotment money on 2,000 share according to 4 rupees per share means 8,000, और 8,000 में अगर ये 1,500 रुपीज एडवांस वाले भी एडजस्ट कर ले मींस 6,500 हमको चाहिए थे, जो वो पे नहीं कर रहा। अब देखिए टोटल हमें अमाउंट चाहिए था अलॉटमेंट पे 4 लाख, जिसमें से 1,50,000 ऑलरेडी एडवांस में आ चुका है तो ये आएगा नहीं, और 6,500 ये हमको पे नहीं कर रहा रजत। तो कितना अमाउंट हम रिसीव करेंगे? हम करेंगे 2,43,500। 2,43,500 रुपीज ये हमें रिसीव होगा ऑन अलॉटमेंट। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और यहां डाल देंगे हम 2,43,500, क्योंकि कॉल सिग्नेचर अकाउंट ओपन करने की क्वेश्चन कह नहीं रहा, तो कॉल सिग्नेचर शो करने की हमें नीड है नहीं। नाउ वी हैव टू ड्यू द अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल, तो उसकी एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ऑन 1 लाख शेयर अकॉर्डिंग टू रुपीज 3 ऑफ फर्स्ट कॉल। हमें अमाउंट की रिक्वायरमेंट है 3 लाख। अब सिमिलर
ये पर्सन जो है रजत, जिसके शेयर थे 2000, वो हमको फर्स्ट कॉल पे नहीं कर रहा, बट वन मोर शेयर होल्डर रीमा who belongs to category second and having 3000 share did not pay the amount of first call of only. तो यानी 3000 शेयर पे हमको फर्स्ट कॉल भी रिसीव नहीं हुई, पर ये होल्डिंग है, मतलब अलॉटेड। अब देखिए हमें लिखा, हमें अलॉटेड की ये रिक्वायरमेंट होती है, रजत के 2000 शेयर, रीमा के 3000 शेयर, टोटल 5000 शेयर का अमाउंट नहीं आ रहा। अकॉर्डिंग टू ₹3 मीन्स 15,000 रुपीज हमें रिसीव नहीं हो रहे। आउट ऑफ 3,15,000 रिसीव नहीं हो रहे, तो कितना अमाउंट हमें रिसीव होगा? 2,85,000। तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, और ये अमाउंट आएगा 2,85,000। नाउ द शेयर ऑफ रजत ऑफ 2000 विल बी फॉरफिटेड। हमने ये शेयर फॉरफिट कर लिए फर्स्ट कॉल के बाद ही, मींस 2 रुपए की सेकंड कॉल तो हमने इससे कॉल ही नहीं की। आउट ऑफ 10 हम 2 रुपीज कॉल नहीं कर रहे, तो मींस कॉल्ड अप वैल्यू क्या है? 8 रुपीज पर शेयर। तो एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000 शेयर थे रजत के, और 8 रुपीज कॉल्ड अप वैल्यू से 16,000 रुपीज हमें रिसीव नहीं हुए। रजत डिड नॉट पे द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट विच इंक्लूड 1 रुपीज ऑफ प्रीमियम, मीन्स रजत ने 1 रुपीज का प्रीमियम भी नहीं दिया होगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 2000 शेयर पर 1 रुपीज से 2000 रुपीज हमें प्रीमियम के रिसीव नहीं हुए। अब उसने हमको क्या पे नहीं किया? एक तो फर्स्ट कॉल पे नहीं की, तो 2 शेयर अलॉटमेंट पे नहीं किया, 2 शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट हमने यहां निकाला है 6,500। एक उसने हमको फर्स्ट कॉल भी पे नहीं की, तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल 2000 शेयर पर 3 रुपीज के रेट से, यानी 6,000 रुपीज उसने हमको फर्स्ट कॉल के पे नहीं की। अब बैलेंस आ जाएगा हमारा किस नेम से? 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के नाम से। तो देखिए 16 + 2 18,000, 18 में से 12,500 माइनस करने हैं, तो कितना अमाउंट बचेगा? 5,500। तो 5,500 अमाउंट किसका हो जाएगा? शेयर फॉरफीचर का अमाउंट हो जाएगा 5,500। नाउ अब हम कॉल कर रहे हैं सेकंड कॉल। देखिए हमारे टोटल शेयर थे 1 लाख। 1 लाख शेयर में से 2,000 शेयर तो हमने रजत के फॉरफिट कर लिए, मींस हमारे शेयर बचे 98,000 ओनली। अब हम 98,000 शेयर पर 2 रुपीज की सेकंड कॉल को ड्यू करेंगे, 1 लाख पर नहीं करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? शेयर फाइनल कॉल डेबिट 2 शेयर कैपिटल, और अमाउंट आएगा 1,96,000 और 98,000 अकॉर्डिंग टू शेयर ऑफ ₹2। अब सेम जो हमारी रीमा सेकंड शेयर होल्डर थी, उसके शेयर थे 3000, उसने हमको सेकंड कॉल पे नहीं की। तो देखिए 3000 शेयर रीमा के और 2 रुपीज के रेट से 6,000 रुपीज हमें रिसीव नहीं हुए। आउट ऑफ 196 अगर 6 रिसीव नहीं हुए तो कितना अमाउंट रिसीव होगा? रिसीव होगा हमें टोटल अमाउंट 1,90,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर फाइनल कॉल 1,90,000। अब हमने रीमा के शेयर को भी फॉरफिट कर लिया, तो एंट्री क्या होगी उसकी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रीमा के शेयर थे 3000 अकॉर्डिंग टू 10 30,000। रीमा ने क्या पे नहीं किया? फर्स्ट और सेकंड कॉल, मींस अलॉटमेंट पे कर चुकी है, मींस प्रीमियम का अमाउंट हमारे पास आ चुका होगा, तो हम प्रीमियम शो नहीं करेंगे। एक तो इसने हमको फर्स्ट कॉल पे नहीं की, 3000 शेयर पर 3 रुपीज के रेट से 9,000, और एक इसने हमको फाइनल कॉल पे नहीं की 3000 शेयर पर 2 रुपीज से 6,000। बैलेंस अमाउंट आ जाएगा 2 शेयर फॉरफिटेड के नाम से। तो कितना अमाउंट आएगा? 30 में से 15 माइनस करोगे तो 15,000, ये हमारा शेयर फॉरफिटेड अमाउंट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन सेइंग दैट कि आउट ऑफ दीज शेयर्स वी हैव टू रीइश्यू 4,000 शेयर्स at ₹8 as fully paid।
तो देखिए हम टोटल शेयर प्रॉफिट कितने कर रहे हैं, 2000 तो हमने किए रजत के, 3000 हमने प्रॉफिट किए रीमा के, टोटल 5000, बट हम केवल रीइश्यू कर रहे हैं 4000 शेयर। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 4000 शेयर 8 रुपीज से 32,000 रुपीज में हम रीइश्यू कर रहे हैं, बट फुली पेड है तो मीन्स उनकी प्राइस क्या थी, वो 2 शेयर कैपिटल, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, 4000 शेयर की 10 रुपीज से 40,000, 40,000 के शेयर हमने रीइश्यू किए 32,000 में, तो मीन्स हमें 8,000 का लॉस हुआ। ये डेबिट में आएगा, किस नेम से, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आउट ऑफ 4,000 इट इंक्लूड ऑल द शेयर्स ऑफ रीमा, रीमा के इसमें सारे शेयर थे, रीमा जो सेकंड पर्सन है, मींस आउट ऑफ 4,000 अगर रीमा के शेयर हैं 3,000 तो रजत के कितने होंगे। मैं ये वाली पोर्शन बता दे रहा हूं थोड़ा सा, कि अगर 4,000 हम शेयर रीइश्यू कर रहे हैं जिसमें 3,000 सारे शेयर रीमा के हैं, तो रजत के कितने होंगे, 1,000। यानी जब रीमा का सारा शेयर रीइश्यू हो रहा है तो इसका फॉरफीचर सारा यूज होगा, क्योंकि सारे शेयर रीइश्यू हो रहे हैं। पर जो रजत था, ये वाला पर्सन, इसके शेयर फॉरफिट किए हमने 2,000, तो ये जो फॉरफीचर है ये अकॉर्डिंग टू 2,000 है, और हमें कन्वर्ट करना होगा 1,000 के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसके शेयर रीइश्यू हो रहे हैं 1,000। तो कन्वर्जन यानी फॉरफिटेड अमाउंट 5,500 मल्टीप्लाई बाय रीइश्यू शेयर, जो इसके हमने शेयर रीइश्यू किए 1,000, डिवाइडेड बाय जितने शेयर हमने इसके फॉरफिट किए थे मींस 2,000, तो ये हो जाएगा 2,750 रुपीज। अब देखिए 2,750 रजत के, 15,000 पूरे रीमा के, टोटल कितना अमाउंट हो गया फॉरफीचर में, 17,750 रुपीज, और 17,750 रुपीज में से 8,000 रुपीज का ये जो रीइश्यू का लॉस है ये माइनस कर दो, तो अमाउंट बचेगा आपका 9,750 रुपीज। तो 9,750 रुपीज की आप एंट्री पास करोगे फॉरफीचर के प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की, तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 9,750 रुपीज, ये लास्ट एंट्री होगी इस वाली एंट्री के बाद। So this is the complete comprehensive question related to share forfeiture or partial reissue, and with the help of this illustration अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस अपने होमवर्क में कंप्लीट करने हैं। ये आपका हाईएस्ट वेटेज का चैप्टर है, इसलिए आपको सिंसियरली ये सारे क्वेश्चंस अपनी बुक में सॉल्व करने हैं। थैंक यू। Now students, let's take another illustration, that is the last illustration of your book, that is illustration number 65. KLN Limited invited application of 1 lakh shares of 10 rupees each at 2 rupees premium. Means 10 rupees का शेयर है, 2 rupees प्रीमियम है, means शेयर की प्राइस होती है 12 rupees. On application, amount was called 3 rupees per share, which include 1 rupees of premium. Means ये क्या किस बेसिस पर है, 2 + 1, 2 rupees की एप्लीकेशन प्लस 1 rupees का प्रीमियम. On allotment, company called 4 rupees, which also include 1 rupees of premium. Means ये किसके ऊपर बेस है, 3 + 1, मतलब 3 rupees allotment प्लस 1 rupees का प्रीमियम. And on first call, company called 3 rupees and balance amount on final call. What is the balance amount? 12 रुपीज़ का शेयर है जिसमें 3, 4 और 3, यानी आप ओवरऑल 10 रुपीज़ कॉल कर चुके हैं, मीन्स 2 रुपीज़ जो बचती है वो आपकी फाइनल कॉल होगी. कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 1,90,000 शेयर एंड अलॉटमेंट मेड एज फॉलोज. अकॉर्डिंग टू कैटेगरी फर्स्ट, एप्लीकेंट्स ऑफ 50,000 शेयर्स अलॉटेड ओनली 40,000 शेयर. मीन्स जिन्होंने 50,000 शेयर की कॉल की थी, मांगे थे, कंपनी ने उनको केवल 40,000 ही शेयर दिए. एंड अकॉर्डिंग टू कैटेगरी सेकंड, एप्लीकेंट्स ऑफ 1 लाख शेयर्स अलॉटेड ओनली 60,000 शेयर. यानी जिन लोगों ने 1 लाख शेयर मांगे उनको कंपनी ने सिर्फ 60,000 शेयर ही दिए. रिमेनिंग अगर कोई एप्लीकेशन बचती है तो वो रिजेक्ट हो जाएगी, ऑब्वियसली बचेगी. देखिए टोटल मिलाकर एप्लीकेंट्स हो रहे हैं 150, एप्लीकेशन आई थी 190, तो कितनी रिजेक्ट हो रही हैं,
40,000 एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही हैं। रजत ए शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू कैटेगरी फर्स्ट एंड अप्लाइड फॉर 2,500 शेयर फेल द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, यानी वो फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट दोनों ही पे नहीं कर पाया। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली, मतलब फर्स्ट कॉल के बाद ही हमने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए, मीन्स सेकंड कॉल मांगने से पहले ही। एंड अनदर शेयर होल्डर रीमा हु बिलोंगिंग टू कैटेगरी सेकंड एंड हु वाज होल्डिंग 3,000 शेयर डिड नॉट पे द अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, यानी रीमा ने फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कॉल नहीं दी। His shares were also forfeited and afterward out of total share 4,000 shares were reissued at 8 as fully paid, यानी दोनों के शेयर मिलाकर उनमें से 4,000 शेयर हमने रीइश्यू कर दिए। एंड दीज रीइश्यू शेयर इंक्लूड ऑल द फॉरफिटेड शेयर ऑफ रीमा, रीमा के सारे शेयर उसमें इंक्लूड हैं। तो आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री क्या होगी आपकी? फर्स्ट एंट्री होगी आपकी रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन मनी। आपको 1,90,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई थी। 1,90,000 एप्लीकेशन पर कितना अमाउंट, और आपका एप्लीकेशन थी 3 रुपीज़ की, तो आपको अमाउंट रिसीव हुआ होगा 5,70,000। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 5,70,000, 1,90,000 इंटू 3। अब आप इसे ट्रांसफ़र करेंगे तो ट्रांसफ़र की जर्नल एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 5,70,000, जिसमें से आप शेयर कैपिटल में जितना अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपके शेयर थे 1 लाख और 1 लाख शेयर में 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन थी, पर 3 रुपीज़ में 1 तो प्रीमियम है, तो मीन्स 2 रुपीज़ के रेट से 2 लाख रुपीज़ आप मैक्सिमम ट्रांसफ़र कर सकते हैं शेयर कैपिटल में, और बचे हुए 1 लाख पर 1 रुपये की प्रीमियम है, तो वो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से आ जाएगा 1 लाख रुपीज़। अब अलॉटमेंट में कितना अमाउंट आएगा? देखिए 190 में 40 तो रिजेक्ट हो गए, तो बचे 150 वालों को आप 1 लाख शेयर दे रहे हैं, मीन्स आपके पास शेयर जो एक्सिस हैं वो हैं 50,000। अब 50,000 एप्लीकेशन एक्सिस हैं 3 रुपये के रेट से, तो 1,50,000 ये अमाउंट आ जाएगा 2 शेयर अलॉटमेंट में 1,50,000। और जो 40,000 रिजेक्ट हुई हैं 40,000 इंटू 3 यानी 1,20,000 टू बैंक में आ जाएगा 1,20,000। तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 570 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1 लाख टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 150 एंड टू बैंक 120। नाउ यू हैव टू पास द जनरल एंट्री ऑफ ड्यू ऑफ अलॉटमेंट। अब आप 190 या 150 नहीं चलेंगे, आप 1 लाख से चलेंगे। अलॉटमेंट है 4 रुपीज़ का, जिसमें 3 रुपीज़ अलॉटमेंट और 1 रुपीज़ प्रीमियम। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट ऑन 1 लाख शेयर अकॉर्डिंग टू रुपीज़ 4 लाख रुपीज़ तो शेयर अलॉटमेंट में आएंगे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल में 1 लाख शेयर इंटू 3 यानी 3 लाख रुपीज़ शेयर कैपिटल में, और रिमेनिंग 1 रुपीज़ टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 1 लाख रुपीज़ आ जाएंगे। अब देखिए 4 लाख रुपीज़ में से 150 तो आपको ऑलरेडी एडवांस में रिसीव हो चुका है, तो बचा कितना? 250। और एक और पर्सन जो कैटेगरी फर्स्ट में आता था रजत, और जिसने 2,500 के लिए अप्लाई किया था, उसने हमको अलॉटमेंट पे नहीं किया। तो पहले तो हमें उसका अलॉटेड निकालना पड़ेगा कि उसने अलॉटेड भले ही किया हो 2,500 के लिए, अप्लाई कितने के लिए किया था? तो 2,500 और अप्लाई मतलब इंटू 50,000 क्योंकि कैटेगरी फर्स्ट है, और डिवाइडेड बाय 40,000 कैटेगरी फर्स्ट के अकॉर्डिंग है। अप्लाई किया तो यानी सॉरी इंटू 40,000 अपॉन 50,000, ये अलॉटेड निकालेंगे तो यानी इसके शेयर आएंगे 2,000, यानी 2,000 शेयर उसको अलॉट किए गए थे। यानी उसने अप्लाई किया 2,500 के लिए, पर शेयर किए गए अलॉट किए गए उसको 2,000, यानी 500 उसके हमारे पास ज़्यादा शेयर के लिए एप्लीकेशन आई। कितने रुपए से? 3 रुपीज़ से। तो मीन्स हमारे पास 1,500 उसके एक्स्ट्रा हैं, 1,500 रुपये। अब देखिए 1,500 रुपये तो उसके एक्स्ट्रा हैं। अब हम उससे मांगेंगे अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितने रुपए का है? अलॉटमेंट की जो वैल्यू है वो है 2,000 शेयर पर 4 रुपये से, यानी हमको चाहिए 8,000। 8,000 में 1,500 तो हमारे पास वो एक्स्ट्रा वाले अगर हम एडजस्ट कर भी लें तो 6,500 वो हमको पे करने वाला था, जो उसने पे नहीं किया। तो देखिए हमें कितना अमाउंट रिसीव होगा?
हमें अमाउंट रिसीव होगा 2,43,500, क्योंकि 4 लाख में से 150 तो हमको एडवांस में आ चुका। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 150 और 6,500 ये रिसीव नहीं हो रहा, तो टोटल रिसीव कितना होगा 2,43,500। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और अमाउंट आएगा इसमें 2,43,500 रुपीज। नाउ यू हैव टू पास द ड्यू ऑफ फर्स्ट कॉल। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और 1 लाख शेयर अकॉर्डिंग टू ₹3 पर ईच, आपका अमाउंट होगा 3 लाख। सिमिलर जो रजत है वो आपको अलॉटमेंट नहीं दे रहा, एज वेल एज फर्स्ट कॉल भी पे नहीं कर रहा। और एक और पर्सन रीमा जो कैटेगरी सेकंड की थी और जिसने 3,000 शेयर जिसको अलॉट किए गए थे, उसने हमको फर्स्ट कॉल उसने भी नहीं दी। अलॉट किए गए थे, एक्सेस अमाउंट हमारा केवल अलॉटमेंट तक एडजस्ट हो रहा है, मीन्स हमें कुछ नहीं करना है। 2,000 शेयर रजत के प्लस 3,000 रीमा के, टोटल हमारे पास 5,000 शेयर का अमाउंट नहीं आ रहा, और कितने रुपए से, 3 रुपीज से, मीन्स हमें 15,000 रुपये रिसीव नहीं हो रहे फर्स्ट कॉल पर। तो आउट ऑफ 3 लाख अगर 15,000 रिसीव नहीं हुए तो कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है, 2,85,000। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 2,85,000 रुपीज। क्लियर? नाउ क्वेश्चन सेइंग दैट the shares of Rajat were forfeited and forfeited just after the first call, means 10 रुपीज के शेयर में हमने 2 रुपीज की फाइनल कॉल मांगने से पहले ही फॉरफिट कर लिया, तो कॉल्ड अप वैल्यू कितनी हुई, 8 रुपीज पर शेयर। तो फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हम रजत के शेयर थे 2,000 शेयर थे और 8 रुपीज कॉल्ड अप से अमाउंट कितना हो जाएगा, 16,000। तो ये 16,000 ये आएगा। अब रजत ने हमको अलॉटमेंट पे नहीं किया, और अलॉटमेंट पे 1 रुपये प्रीमियम का भी था, तो मीन्स रजत ने हमको वो 1 रुपये प्रीमियम का भी पे नहीं किया होगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 2,000 शेयर पर 1 रुपये से 2,000 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का भी आएगा। अब उसने हमको क्या पे नहीं किया, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 6,500 जो मैंने अमाउंट निकाला था, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 2,000 शेयर पर और 3 रुपये के रेट से फर्स्ट कॉल नहीं आई 6,000 रुपये की। बैलेंस अमाउंट आएगा 2 शेयर फॉर फीचर के नाम से 16 to 18 में अगर आप 12,500 माइनस करोगे तो 5,500 रुपीज ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। नाउ वी हैव टू पास द ड्यू ऑफ फाइनल कॉल। तो ड्यू करने की फाइनल कॉल की एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखिए हमारे शेयर थे 1 लाख में से 2,000 शेयर तो फाइनल हमारे फॉरफिट हो गए, तो बचे कितने 98,000। तो 98,000 शेयर पर 2 रुपीज से फर्स्ट कॉल कितने की होगी, 1,96,000 की। क्लियर? अब वो 3,000 वाली जो रीमा है वो सेकंड कॉल भी पे नहीं कर रही, तो 3,000 शेयर पर 2 रुपीज के रेट से कितना अमाउंट रिसीव नहीं होगा, 6,000। तो 196 में अगर 6 रिसीव नहीं हुई तो कितना अमाउंट रिसीव होगा, 1,90,000। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल और अमाउंट आएगा इसका 1,90,000। अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि टोटल जो शेयर हमने 5,000 फॉरफिट किए थे रीमा और रजत के मिलाकर, उसमें से 4,000 शेयर हमने री इशू कर दिए, और वो री इशू किए 8 रुपीज उससे पहले तो हमें फॉरफीचर करना है रीमा के शेयर का। तो रीमा के शेयर देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रीमा के शेयर थे 3,000, पूरी कॉल्ड अप वैल्यू 10 रुपीज मीन 30,000। क्या नहीं दिया इसने, फर्स्ट कॉल नहीं दी 3,000 शेयर पे 3 रुपीज के रेट से 9,000 की, और सेकंड कॉल नहीं दी 3,000 शेयर पे 2 रुपीज के रेट से 6,000 की। बैलेंस अमाउंट 2 शेयर फॉरफीचर में आ जाएगा 15,000 रुपीज। अब हमने 4,000 शेयर री इशू कर दिए 8 रुपीज एज फुली पेड के रेट से। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 4,000 शेयर 8 रुपीज के रेट से 4,000 शेयर और 8 रुपीज के रेट से 32,000 रुपीज। अब एक्चुअली ये शेयर थे कितने के, फुली पेड में रीइशू किया है तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और यहाँ पे 4,000 शेयर की फुली पेड वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर से 40,000 रुपीज थी। मीन्स
40,000 के शेयर हमने 32,000 में रीइशू किए, मीन्स हमें 8,000 का लॉस हुआ, तो ये 8,000 यहाँ पर आ जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट के नेम से। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जो 4,000 हमने शेयर रीइशू किए उसमें रीमा के सारे शेयर थे। तो देखिए 4,000 शेयर रीइशू करना है जिसमें रीमा के 3,000 सारे इंक्लूड है, तो मीन्स रजत के कितने हैं, रजत के 1,000 हैं, यानी हम रजत के जो शेयर रीइशू कर रहे हैं वो केवल 1,000 शेयर रीइशू कर रहे हैं। तो देखिए सीमा के अगर सारे हैं रीमा के तो इसका 15,000 तो ये पूरा आएगा, पर रजत का आप देखिए रजत का जो फॉरफीचर का अमाउंट है वो कितना आना है। रजत का फॉरफीचर है हमारा, अगर आप देखेंगे रजत का फॉरफीचर मैं आपको दिखाऊं, रजत का फॉरफीचर है ऊपर देखिए 5,500, तो ये है कितने शेयर के लिए, 2,000 की, क्योंकि हमने इसको 2,000 में हमने फॉरफिट किए थे, तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा 1,000 के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था फॉरफिटेड अकाउंट जो अमाउंट कितना है 5,500 इंटू शेयर फॉरफिटेड जितने हमने इसके रीइशू करें यानी 1,000 डिवाइडेड बाय जितने फॉरफिट किए थे यानी 2,000, तो अमाउंट आएगा 2,750। तो ये रजत का फॉरफीचर हो गया 2,750। तो देखिए 2,750 रजत का प्लस 15,000 पूरा फॉरफीचर सीमा का जो हमने यहाँ पे निकाल रखा है, टोटल कितना हो गया 17,750 रुपीज़। और इसमें से जो लॉस हुआ है हमको री इशू का 8,000 माइनस कर देंगे तो अमाउंट आएगा 9,750 रुपीज़, जो हम ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पर, कैपिटल रिजर्व में। और एंट्री क्या होगी इसकी, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व और 9,750 rupees. So this is the complete another comprehensive illustration, that is illustration number 65. अब इस क्वेश्चन या इस इलस्ट्रेशन के साथ आपका ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। अब आपको इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में सॉल्व करने हैं। ये रिमाइंड रखिएगा कि ये इंडिविजुअली सबसे हाईएस्ट मार्क्स का चैप्टर है, इसलिए आप सिंसियरली इसके क्वेश्चन करिएगा। थैंक यू।